Assalamualaikum, dear students. Today we will basically discuss about equal and equivalent sets. So first of all, we will discuss about equal and then we will discuss about equivalent sets, and of course there is a relation between equal and equivalent sets as well. So before first of all, we will discuss about equal sets. Two sets, so suppose two sets say A and B, two sets A and B are equal if they have same members or elements. तो दो सेट्स इक्वल कराएंगे जब उनके मेंबर्स जो हैं सेट्स के, दोनों सेट्स के जिनको हमने अज्यूम किया हुआ है ए और बी नाम दिए हुए हैं वो सेम हो. ठीक है. फॉर एग्जांपल say suppose we have A is equal to 1 2 3 and B is equal to, assume that it's also 1 and 1 2 and 3. So in this case we can say A and B are equal, are same. Similarly, sometime say suppose we have A is equal to 2 3 5 and B set is basically 5 2 and 3. Again, if you see the member of both sets, 2 is here, 3 is also here, and 5 is also here. And because in the set the order of the element is immaterial, so we can say these A and B are basically same. And second term is basically equivalent set. Equivalent set, two sets say A and B are equivalent two sets say A and B are equivalent if they have the same number of elements. If they have the same number of elements. So same number of elements की यहाँ पर बात हो रही है. तो number of elements हम कहते हैं ऑर्डर को. ठीक है. number of elements हम तादाद बताते हैं, सेट्स का तादाद. ठीक है. So sets equivalent होंगे whatever elements are there, but just we will see how many elements are there in both sets. If elements of both sets, number of elements of both sets are equal, means the order of both sets are equal, then we can say sets are equivalent. For example, if I say n of A, if number of elements order of A is equal to order of B, this implies A is said to be equivalent to B. So this is basically notation of equivalent sets. A will be equivalent to set. क्लियर. तो यहाँ पर हम एलिमेंट्स के तादाद की बात कर रहे हैं. एलिमेंट्स कैसे हैं वो नहीं देख रहे हैं. फॉर एग्जांपल we have the set A, elements are 1 2 3, and we have set B, elements are A B C. So whatever elements are there, just we will count the basically order.
So the order of this set is 3, and also the order of this set is 3. So we can say A is equivalent to B because order of A is same like order of. Is it clear? So this is the definition of equal. Okay, so further to strengthen basically the definition of equal and equivalent sets, there are some questions. Which of the following pair of sets are equal or equivalent? Equal or equivalent? ये बताना है कि इक्वल उसमें कौन से हैं और इक्विवेलेंट कौन से हैं. ठीक है. सबसे पहले अगर सेट ए और बी को देखा जाए तो सेट ए में जो गिवन है सेट हैज ए बेसिक एलिमेंट x such that x belongs to natural number. यहाँ पर जो नेचुरल नंबर है वो 1 से ले रहे हैं 1 2 3 4 5 and whole number 0 1 2 3 4 5 to so on. A is a set of the elements such that x belongs to n and x is less than or equal to 6. So definitely A will have the elements like, because A will start to 1, so this will be 1 2 3 4 5 and 6. And we have another set. Second set is x such that x belongs to w, x belongs to whole number, and elements x is basically start from 1 and its end to the 6, means 1 less than or equal to x and x less than or equal to 6. So again, this set has same elements 1 2 3 4 5 and 6. So in this case, can I say this A and B are same? There is a correspondence. So A and B are same, and also if we see the order of both sets, so order of first set is 6 and order of second set is basically set is also 6. So in this case, we can say A and B are equal and A is also equivalent to. In the first case, both are equal and equivalent as well. Now see the second set. In the second set, we need a set of letters in a word plain. P, L, A, and E. So again, we have another set Q, the set of letters in a word plain. P, L, A, I. So now, if we see same correspondence here, P is the same, L is the same, A is the same, but N is the same, but there is a difference of I and E. I and E are not same. So we can say P and Q, P is not equal to set Q. इनमें same elements नहीं है. चलो अब तादाद देखते हैं, काउंट करते हैं, ऑर्डर देखते हैं. So order will be 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 5. So order is same, means we can say P is equivalent to Q, but P is not equal to. P is equal to Q, but P is not equal to Q. तो same. Third set जो हमारे पास set X और Y given है. X जो है वो the set of colors in the rainbow. ठीक है, rainbow में जो set of colors जो है वो अगर आपको पता नहीं है तो वो 7 होते हैं जो basic color का कहे जाते हैं, foundation colors. ठीक है, and the set of days in a week. तो वो जो हमारे पास है 7 हो गए डेफिनेटली, मगर कलर एक अलग चीज हो गई, डेज एक अलग चीज हो गई, तो वो तो सेम नहीं हो सकते. अगेन इन दिस केस x is not equal to y, x is not equal to y. ये सेम तो नहीं है, मगर इनका ऑर्डर सेम है, तो ये हम इक्विवेलेंट कह सकते हैं. x is equal to. So overall these are the examples of equal and equivalent sets. और यहाँ पर एक और चीज आप हमारे जो हमें नजर आई कि अगर सेट्स इक्वल हैं तो वो इक्विवेलेंट भी है. If sets are equal, then it's also equivalent. But there are few sets they are equivalent but not equal.
So in this case we can say every equal set is equivalent, but every, so as we seen in the example, we can say equal sets, this is the relation you may note, basically equal sets are always, equal sets are always equivalent, equal sets are always equivalent, but every equal set, every equivalent set, every equivalent set equivalent sets need not to be equal. कुछ हो सकते हैं, जैसे हमने पास एग्जांपल देखा था इक्वल भी थे, इक्विवेलेंट भी थे, और बाकी जो एग्जांपल से उसमें हमने ये देखा कि इक्विवेलेंट तो है मगर इक्वल नहीं थे। ठीक है, तो हम उस केस में हम कहेंगे कि वो हर इक्विवेलेंट सेट जो है वो जरूरी नहीं है कि इक्वल हो, बट हाँ हर इक्वल सेट जो है वो इक्विवेलेंट सेट होता है। ठीक है, or sometime we have another definition, very abstract definition. We can say two sets A and B are equal if and only if, this is a symbol of, means implies both implication, if and only if order of A means A should be equivalent to B, means order of A should be equal to order of B, and elements of both sets should be same. This is another definition of equality between two sets. दो सेट्स इक्वल होंगे, पहले तो वो इक्वलेंट हो, मींस उनका ऑर्डर सेम हो और उनके एलिमेंट्स भी सेम हो। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई करता है तो हम इसको भी इक्वल सेट्स कहते हैं। ओके, नाउ वी आर बेसिकली टॉकिंग अबाउट द सबसेट्स। ये भी एक रिलेशन है बिटवीन टू सेट्स। पहले हमने इक्वल देखा, इक्विवेलेंट देखा, अब हमारे पास जो है वो सबसेट्स की बात कहते हैं। सो इन सबसेट्स से सपोज लेट we have two sets A and B और empty भी हो सकता है, मगर हम फिलहाल उसको सेट्स कह देते हैं कि हमारे पास कोई दो सेट्स हैं, इनका रिलेशन आपस में डिस्कस करते हैं कि ये सबसेट कब होगा। ठीक है, सेट A is a subset of सेट B। A जो है वो B का सबसेट होगा, कब होगा? ठीक है, if all the elements of A, if all the elements of A के जितने भी एलिमेंट्स हैं, ठीक है, are contained in or member of, ठीक है, ए बी का सबसेट होगा, कब होगा? ए के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो बी में मौजूद है। ठीक है, इसको समटाइम ऐसे भी देखते हैं, समटाइम इसको हम कहते हैं कि इसके अलग से दूसरे सेट ए सबसेट ऑफ बी, सेट ए इज सबसेट ये बी का सबसेट होगा
if and only if every element of A is also an element of B. Is a subset of B if and only if every element of A every element of A का हर एलिमेंट जो है is also element of A का हर एलिमेंट जो है वो B का एलिमेंट है। समटाइम फिर हम इसको जो डिनोट करते हैं, ठीक है, इसको कहते हैं कि इसको लिखते हैं A is subset of B. This is the sign of subset. Is a subset of B. What does mean by this notation? There are basically two notations, parallel two notations. First, A should be in B or A may be equal to B. ये हम दो जो है ना दोनों जो है वो एक नोटेशन में दो स्टेटमेंट्स आ जाते हैं कि A या तो B में होगा या फिर A B के इक्वल होगा, ठीक है। Sometime mathematically we basically used to write the definition of subsets like A is subset of B if A belongs to B, if A belongs to A, कोई भी A का एलिमेंट ले लें तो वो then वो B में मौजूद है। Sometimes this is again definition of subset. A is a subset of B. A B का सबसेट होगा कब? जब कोई भी एलिमेंट ले A से वो B में मौजूद है, ठीक है। अगर every element, it means every element of A is also in B, ठीक है। And this is the same basically definition as I have written in the words. Is it clear? So this is overall the definition of a subset of subset. A few more examples about the subset. Assume we have the set A, and elements of set A are 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9. And we have another set B. B has element 3, 4, 5, 6, 7, 8. And C has element 1, 2, 3, 4, 7, 8. And D has element 6, 7, and 8. So suppose we have another set E whose elements are, for example, 7, 8, 9, 5, 4, 3, 1, and 2. So if I say, can we determine whether B is a subset of A or not? Similarly, C is a subset of A or not? D is a subset of, means all the possible relation of B, C, D, E with the A in terms of subset. So first of all, by definition is A is a subset of B if every element of A is also in B. So now, if you see the relation between A and B, every element of B should be in A. For example, 3 is in A, yes. 4 is in A, yes. 5 is in A, yes. But 6 does not belongs to, 6 belongs to B, but 6 does not belongs to A. So in this case, 6 belongs to B, but 6 does not belongs to A. So in this case, we can say B cannot be subset of A. So simple आप लिखेंगे B is not, इसको साइन कर देते हैं ऐसे, B is not subset of, क्रॉस कर देते हैं, ठीक है। सबसेट को क्रॉस करेंगे तो वो हम उसका मतलब है कि वो उसका सबसेट नहीं है। क्यों सबसेट नहीं? B A का सबसेट क्यों नहीं था? ठीक है, ये जनरलाइज है, हम एक्स वाई लिख सकते हैं जो भी है। तो ये 6 ऐसा एलिमेंट था जो कि B में मौजूद है और A में मौजूद नहीं है, तो हमने कहा ये B A का सबसेट नहीं हो सकता। ओके, सी अबाउट दिस बेसिकली अबाउट दिस वन सेट।
Again, 1 is here, 2 is here, 3 is here, 4 is here, 7 is also here, and 8 is also here. So all the elements of C are also in B. So in this case, we can say C is a subset of A because every element of C is also in set A as well. Now we will discuss about set D. Again, if you see D, 6, is it possible to say D is a subset of A? Just take it. 6 is a basically element in D, but 6 does not belongs to A. So in this case, we can say because 6 D से belong कर रहा है and 6 जो है वो D से A से belong नहीं कर रहा, इस केस में हम कहेंगे D जो है वो A का सबसेट नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि एक एलिमेंट जो है वो इससे ज्यादा था, उस केस में हमने कहा कि ये नहीं है पॉसिबल। ओके, E को चेक करते हैं कि whether E is a subset of A or not. So now first 7 is in E, 7 is also in A, 8 is in E, 8 is also in A, 9 is in E, 9 is also in A. Similarly, 4 is here, 5 is here, 4 is here, 3 is also here, and 1 is also in the set A, 2 is also in set A. So every element of E is also in A. So we can say E is subset of E. But if you rearrange the elements, of E, it will be basically same to same A. So it means every set it's a subset of itself as well. So क्योंकि E जो है ना वो जस्ट नाम अलग से था, उसको मैनेज करके नहीं लिखा गया था। जब आप इसी को पर्टिकुलर ऑर्डर में लिखेंगे, जैसे ये लिखा गया है, तो इस केस में आप कहेंगे ये जो E है वो वही सेम है जो कि A है। तो इस केस में आप कहेंगे इट मींस if we generalize this statement, we can say every set is a subset of itself because we have another basically sign the notation. So every set is a subset of, अगर A में नहीं है, सॉरी A में है या फिर उसके इक्वल है, आपस में इक्वल हम कह सकते हैं कि A is a subset of itself। और दूसरा ये हमेशा ध्यान रखें कि एम्प्टी सेट जो होता है वो ऑलवेज सबसेट होता है एवरी सेट का, ठीक है। एम्प्टी इज ऑलवेज सबसेट ऑफ एवरी नॉन एम्प्टी सेट। अगर एम्प्टी भी हो तो अपने आप का होगा, और अगर नॉन एम्प्टी होगा तो वो सब का जो है ना वो सबसेट बन जाता है एम्प्टी सेट। ओके, सबसेट के बाद एक और जो है ना मोस्टली साइन को यूज करते हैं, दिस वन इज द प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर सबसेट और सबसेट का थोड़ा सा डिफरेंस होता है, ठीक है। और डिफरेंस ये होता है कि when we talk about proper subset, if I say A is proper subset of set B, अगर A प्रॉपर सबसेट हो सेट B का, it means all the elements of A are in B, जितने भी एक एलिमेंट्स हैं वो B में होंगे, and there are some elements in B but not in A। इसका मतलब ये हुआ कि A पूरा का पूरा B में होगा, मगर B में कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट्स होंगे जो कि A में नहीं होंगे। सबसेट के लिए ये कंडीशन नहीं हो भी सकता है, नहीं हो सकता। इस केस में ये प्रॉपरली B में होगा जब इसके तमाम एलिमेंट्स वो B में हो, मगर B के कुछ ऐसे एलिमेंट्स हो जो A में ना हो, ठीक है। तो अगर ऐसी कोई कंडीशन बन जाती है तो उस केस में आप कहते हैं कि वो प्रॉपर सबसेट होता है। तो जस्ट उसमें जो हम इक्वल साइन यूज कर रहे थे, यहाँ पर जस्ट इक्वलिटी हमें निकाल दी है। इक्वलिटी निकाल देंगे तो इक्वल नहीं हो सकता, मगर उसमें उसका एक पोर्शन हो सकता है। उस पोर्शन को आप
वेन डायग्राम के थ्रू भी अगर पढ़ेंगे हम, ठीक है। अगर ये सेट कोई ये बी तो उसका ये कोई हिस्सा है, ठीक है, जो कि हमने ए कह दिया। तो ये तमाम के तमाम एलिमेंट्स ए के बी में होंगे, मगर देयर आर सम गाइस लाइक दिस वन, देयर आर सम गाइस दैट आर इन बी बट दैट आर नॉट इन ए, ठीक है। तो आप इस केस में कहेंगे वो इसका प्रॉपर सबसेट बनेगा। ओके, नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट पॉसिबल सबसेट ऑफ ए सेट। कोई भी अगर सेट है नॉन एम्प्टी तो उसके पॉसिबल सबसेट कितने होंगे, ठीक है। कितने होंगे, तादाद की बात कर रहा हूं, तो यहाँ पर लिखा है नंबर ऑफ सबसेट्स, पॉसिबल कार्डिनलिटी और ऑफ ए सबसेट्स, ठीक है। तो say suppose we have the set like A has the element like A, B and C. Is it clear? So in this case we can say suppose we have a set like A, P1 which is basically A, P2 which is equal to B, set B, P3 which is set C, P4 which is basically A and B, P5 which is basically A and C, P6 which is B and C can be, P7 we can have A, B and C as well, A, B and C as well, and P8 which is basically empty set. So can I say this A is in A, this P1 is in A? Your answer would be yes. P2 is in A, it should be yes. P3, P4, AB is also subset, can be subset of A. P5, A and C also in A, आप ये कहेंगे ये भी हो सकता है। P6 जो है वो B and C है, तो B and C भी यहाँ पर मौजूद है, हम कहेंगे ये भी हो सकता है। खुद अपने आप जैसा ABC वो भी इसमें मौजूद है। और एम्प्टी सेट जैसे मैंने पहले भी कहा कि ये ऑलवेज सबसेट होता है एवरी सेट का। सो पॉसिबल सबसेट ऑफ सेट A is 1 2 3 4 5 6 7 8। टोटल पॉसिबल सबसेट जो है इस A के वो कितने होंगे, वो 8 होंगे, ठीक है। तो इसका एक फार्मूला होता है, इसको हम डायरेक्टली ऐसे भी लिखते हैं पॉसिबल सबसेट का कि 2A is a possible subset which is 2 power n, where n is the number of element. S is a possible subset and n is the number of element. So number of elements are 3, so 2 power 3 will be basically 8. So this is a generalized formula of possible subset of a given set. If I generalize this one, आप इसको चेक कर सकते हो, ठीक है। It's your task. You may check. Say suppose A has only 2 elements. B has, say suppose A, B, C and D 4 elements. We have another set C, which is A, E, I, O, U, ठीक है। अगर आपसे कहा जाए कि भाई इनके पॉसिबल सबसेट बताना है, तो आप पॉसिबल सबसेट आप जैसे अभी मैंने थोड़ी देर पहले किया, आपने वो सारे के सारे बनाने हैं, मगर वो तमाम के तमाम सेटिस्फाई करेंगे पॉसिबल सबसेट सबसेट्स जो कि इक्वल होगा 2 की पावर n if order of the set, assume if order of the set is basically n. सेट कोई भी होगा A, B, C कुछ भी नाम दे दें, n of A अगर मैं कह दूं तो वो आपका n, क्योंकि रिपीट हो रहा है मैं यहाँ पर ऑर्डर लिख देता हूं, ऑर्डर ऑफ A शुड बी इक्वल, जो उस सेट का ऑर्डर होगा वो 2 की पावर में पुट करेंगे तो आपके पास ये तमाम पॉसिबल सबसेट्स आ जाएंगे। सो दिस इज द बेसिकली डेफिनेशन ऑफ पॉसिबल सबसेट्स ऑफ।
So here I have written just some questions, and we have to determine whether these statements are true or false statement. So first one I have just written, X belong to set X. Is it true or false? So your answer would be yes, element can belongs to the given set. So this will be basically true statement. Set can be subset of itself. Yes, it is also true. Set belongs to set. Set belongs to set is not possible. This is a false. This set belongs to the given set of the set. So yes, this will be true. Because this is the member, like this is the another set, and this set is the member of this. Empty is always subset of every set. Yes, this will be true. Empty, because empty is itself a set, it does not belongs to the basically set. This is the false. So always keep in mind, ये थोड़ा जो है ना वो फर्क जो है आपने रखना है कि सेट का से बिलोंग नहीं करता, सेट के इनसाइड अगर सेट पड़ा हुआ तो उससे बिलोंग करता है। ठीक है, जैसे फिर फॉर एग्जांपल मैं लिखूं एक सेट है ए जो इक्वल है 1, अब यहाँ पर 1 सेट जो है वो उसका सेट एलिमेंट है 1 and 2 और यहाँ पर। अब इस केस में मैं कह सकता हूं कि ये जो सेट है, क्योंकि इस सेट का मेंबर है, तो आप इस सेट में कह सकते हैं कि ये बिलोंग करेगा ए के साथ। ठीक है, और ये इसका सबसेट नहीं होगा। ये जो सेट है ये इसका सबसेट नहीं, ये एलिमेंट है, इससे बिलोंग करेगा। अगर मैं इसको ऐसे 1 सबसेट ऑफ ए लिखूंगा तो ये फिर गलत हो जाएगा। यहां पर ये जो 1 है वो इसका सबसेट नहीं होगा, ये एलिमेंट होगा, और ये सबसेट जो है इसकी ये एक और ब्रैकेट जो इसके सामने लगानी पड़ेगी, उसके बाद ये जाके सबसेट बनेगा। तो ये इस टाइप के स्टेटमेंट्स को थोड़ा आपने ओके। सो नाउ वी हैव अनदर सेट दैट इज नोन एज पावर सेट। पावर सेट जो है वो बेसिकली ऐसा सेट है जो कि कलेक्शन सेट के सबसेट्स की कलेक्शन को पावर सेट कहा जाता है। ठीक है, और इन अदर वर्ड्स आप ये कह सकते हैं कि पावर सेट इज अ सेट ऑफ ऑल द सबसेट ऑफ अ सेट। ठीक है, पावर सेट is a set of power set is a set of all subset of a set। तो जो भी इसका नाम होगा उस सेट का, ठीक है, जितने भी सबसेट बनाए उस कलेक्शन को जो है ना पावर सेट कहा जाता है। उस डिनोटेड बाय, ठीक है, P is a power. So suppose we have said A's, so this is the P of S. Is it clear? Power set means ये जो A's all possible subsets थे और P of S कह दिया तो ये उसका पावर सेट हो जाएगा। ठीक है, और अगर ऑर्डर की बात कहूं तो ऑर्डर, इसमें सारे के सारे वही सबसेट्स आ रहे हैं जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था। तो ऑर्डर ऑफ पावर सेट जिसको हम n ऑफ P ऑफ S कहते हैं, जो कि हमारा 2 पावर n होगा, where n is the order of a set। ठीक है, इसको जरूर ध्यान रखना। वो उसके जो सेट A है या जो सेट जो गिवन होगा उसका ऑर्डर होगा। फॉर एग्जांपल अभी थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया था A, उसके एलिमेंट से A B C, तो हम कहेंगे इसका पावर सेट जो होगा, अगर मैं सारी कलेक्शन को कंबाइन करके लिखूं, ठीक है, सेम सेट की कलेक्शन को अगर मैं लिख दूं, so it will be like, say suppose we have said A and elements are A, या मैं इसको 1 2 3 कह दूं। ठीक है, so power set of all possible subset of A जो कि इक्वल होगा, फर्स्ट जो हमने लिया था 1 2 3, 1 and 2, 1 and 3, 2 and 3, ठीक है, 1 2 and 3, 1 3 आ गया,
1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 आ गया और एक हमारा एम्प्टी सेट होगा उसमें, ठीक है। So power set is a collection of all possible subset of a given set. Now again, if we count 1 2 3 4 5 6 7 8, so overall there are 8 elements, means order of power set of A is basically 2 power 3, which is 8. So always keep in mind, order of power set is a basically possible subset of a given set. Okay, now we are discussing basically operation on sets. इसको briefly discussion जो है वो हमारा अगला एपिसोड है उसमें जो है वो सर शुएब आपको समझाएगा। मैं इसकी बस थोड़ी बेसिक की डेफिनेशन बता देता हूँ। यूनियन ऑफ टू सेट्स, सपोज यूनियन ऑफ अ सेट्स like we have sets A and B, we denote A union B like this one. A union B, and A union B is the operation in which we just combine all the elements of A and elements of B. Means A union B have elements like X such that X belongs to A or X belongs to B. वैसे समझे कि अगर यूनियन करते हैं तो उसका मतलब ये होता है कि A और B के एलिमेंट्स को कंबाइन करके लिखना। हाँ, तो डेफिनेशन की आपने सेट की डेफिनेशन भी ध्यान में रखनी है कि उसमें ये होता है कि अगर सेम एलिमेंट्स आ जाए तो उनको एज ए सिंगल काउंट करना है। फॉर एग्जांपल A is 1 2 3 4 and B is, say suppose 2 3 5 and 6. If I say, then its union A union B will be all the elements of A and all the elements of B. But and also we will continue the definition of the sets. That's why we just count 2 and 3 as a single time. So this will be 1 2 3 4 5 and 6. So this is basically union between two sets. All the elements of X, in the union we will take the elements of X, elements like X, such that X is an element of A or is an element of A का हो या B का हो या दोनों का हो, ठीक है। इसको हम कहते हैं इंक्लूसिव आर। सो इंक्लूसिव आर मीन्स X is from A, वो भी हम रखेंगे, X is from B, वो भी रखेंगे, और अगर दोनों का एलिमेंट हो उसको भी सिंगल काउंट करेंगे। जैसे यहाँ पर था 1 A का था, B का नहीं था, हमने रखा, A का होगा फिर भी रखेंगे। 6 B का था, A का नहीं था, वो भी हमने रखा। 2 and 3 A का भी है, B का भी, वो भी रखा, ठीक है। तो सबको कंबाइन करके रखना। दिस इज बेसिकली इंक्लूसिव आर, जो हमारा यूनियन के मद में आता है, ठीक है जी। सिमिलरली इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स, intersection of two sets means common elements of A and B. In the intersection, the elements will be just common elements of A and B, and it's denoted by A intersection B. Again, by set better form, the definition A intersection B has element X, such that X belongs to A. यहाँ पर R था, यहाँ पर A लगाया, X belongs to A and X belongs to B. इनमें डिफरेंस क्या है? R में ये था कि किसी एक सेट का एलिमेंट हो वो भी आ जाएगा, मगर एंड में ये है कि दोनों का अगर एलिमेंट वो कंबाइन तो आएगा, अदरवाइज वो एलिमेंट नहीं है। So suppose A has elements like 1 2 3 and 4. B has element like 2 3 say suppose 0 3 4 and 5. And now if I say what will be intersection, in the intersection we need an element that should be from A and from B. One is belongs to A and one is not in B. We will not take the element. 2 is in A but 2 is not in B. वो भी हम नहीं लेंगे। 3 is in A and 3 is in also B, means A intersection B will be 3 is here, 3 is here, yes.
4 is belongs to A and as well 4 belongs to B. But 5 is not basically in the set B, is in the set A, so we will have only these common elements. Is it clear? तो ये common elements जो है वो इंटरसेक्शन में आएंगे. इनका वेन डायग्राम जो फिर हम अगले एपिसोड में जो है सर शोएब आपको समझाएगा वेन डायग्राम के थ्रू यूनियन और इंटरसेक्शन का पोर्शन कैसे बताया जाता है. थर्ड वन सेट जो है इट्स अगेन इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट सेट और इसको हम कहते हैं डिफरेंस ऑफ A union B is X such that X belongs to A or X belongs to B and X belongs to A and X belongs to B. Now third one set difference of two set. तो difference sometime A minus B होगा या फिर B माइनस ए होगा. ये डिफरेंट होते हैं, ये सेम नहीं होते. वो देखते हैं वो कैसे. A माइनस बी को हम समटाइम ऐसे लिखते हैं कि आप A लेस बी है. ठीक है, A लेस बी होंगे. A के एलिमेंट्स और B के नहीं होने चाहिए. B माइनस ए को भी हम ऐसे लिखते हैं कि B लेस A. ठीक है, तमाम एलिमेंट्स मुझे A की चाहिए, B के नहीं चाहिए. और यहाँ पर तमाम एलिमेंट्स बी के चाहिए और ए के नहीं चाहिए. तो इसको कैसे लिखेंगे? इसको लिखेंगे हमें एलिमेंट चाहिए एक्स जैसा सच दैट एक्स जो है वो ए से बिलोंग करता हो, एक्स ए में हो एंड बी का एलिमेंट ना हो एंड वो एलिमेंट बी का नहीं होना चाहिए. अगर होगा तो उसको निकाल देंगे. इस केस में हम कहेंगे कि ये जो है एक्स सच दैट एक्स बी का एलिमेंट हो एंड एक्स ए का एलिमेंट ना हो. ठीक है, दिस इज द एब्स्ट्रैक्ट डेफिनेशन ऑफ डिफरेंस ऑफ टू सेट्स. इसको एग्जांपल के थ्रू में बता देता हूं, आपको समझ में आ जाएगा आई होप. से सपोज ए हैज द एलिमेंट्स लाइक 1 2 3 4 एंड बी हैज द एलिमेंट लाइक 0 3 4 5. चलो 4 5 तक कर देता हूं. A माइनस बी का मतलब क्या है? हम मुझे A के एलिमेंट तमाम A के एलिमेंट चाहिए मगर वो ऐसे एलिमेंट्स हो जो उसमें B इस सेट में B के एलिमेंट ना हो. चलो देखता हूं जी. A का एलिमेंट 1 है, क्या वो B में है? नहीं है. A का एलिमेंट 2 है, क्या वो B में है? नहीं है, लिख लिया. A का एलिमेंट 3 है, वो B में है? ये B में, ये नहीं लिखेंगे. A का एलिमेंट 4 है, ठीक है, क्या वो बी में है? हमने कहा ये यहाँ पर बी में है, ये भी नहीं लिखेंगे. तो ओनली एक एलिमेंट जो आएंगे ए डिफरेंस बी के वो 1 एंड 2 आएंगे. सिमिलरली अगर से व्हाट विल बी बी माइनस ए मींस बी लेस ए. तो अब बी के रिस्पेक्ट देखते हैं. बी में एलिमेंट 0 पड़ा हुआ है, ठीक है, और वो ए में है? नहीं है, लिख दिया. बी में 3 पड़ा हुआ है, ए में नहीं लिखेंगे. 4 पड़ा हुआ है, ए में नहीं लिखेंगे. 5 पड़ा हुआ है जो कि ए में नहीं है, तो 0 एंड 5. और यहाँ पर क्लियर नजर आ रहा है आपको. आपको ए माइनस बी और बी माइनस ए भी आपस में सेम नहीं है. सो ए माइनस बी और बी माइनस ए कभी भी सम टाइम मे बी इट्स पॉसिबल मगर इन जनरल केस बोथ आर नॉट. ओके, वी हैव नाउ another set that's known as basically universal set. मैंने इसकी डेफिनेशन लिखी है. यूनिवर्सल सेट इज अ सेट व्हिच कंटेन्स ऑल द एलिमेंट्स ऑफ अदर सेट इंक्लूडिंग इटसेल्फ. ठीक है, तो या फिर हम यूनिवर्सल सेट को किसी मखसूस रीजन में भी डिफाइन करते हैं, अंडर कंसीडर्ड रीजन में डिफाइन करते हैं. सपोज इफ आई से दिस क्लासरूम इज अ यूनिवर्सल सेट. It contains all the set of tables, set of chairs, set of computers. Say suppose everything is there. उन सब के छोटे छोटे सेट बना दूं तो मैं कह सकता हूँ कि क्लासरूम जो होगा वो यूनिवर्सल सेट होगा जो इस अंडर द बाउंड्री जितनी चीजें पड़ी हुई. और अगर क्लासरूम जो है वो किस बिल्डिंग में है, से सपोज आई एम हियर इन ब्लॉक 3, मैं कहूँगा कि ब्लॉक 3 इज अ यूनिवर्सल सेट जिसमें तमाम के तमाम क्लासरूम्स के सेट्स आ जाएंगे, फर्नीचर आ जाएगा और अदर देन जो भी चीजें हैं वो भी आ जाएंगी. तो उसको भी फिर आप उसी को अगर और भी जनरलाइज कर दें यूनिवर्सल सेट को तो वो ब्लॉक 3 क्योंकि आईबीए में है तो हम कह सकते हैं कि आईबीए इज अ यूनिवर्सल सेट
जिसमें तमाम के तमाम डिपार्टमेंट्स आ रहे हैं, तमाम की तमाम बिल्डिंग्स आ रही हैं, फर्नीचर, एम्प्लॉइज, स्टूडेंट्स, एवरीथिंग। फिर आईबीए कहाँ पर है जी? हमें पता है कि वो सिंध में है, तो हम कह सकते हैं फिर सिंध जो है वो उसका यूनिवर्सल सेट है। सिमिलरली फिर पाकिस्तान का वर्ड, यूनिवर्स, ऐसे जो है वो, तो यूनिवर्सल सेट अंडर कंसीडरेशन जो है ना वो डिफाइन किया जाता है, जैसे हमने यहाँ पर डिफाइन किया हुआ है। इसको आगे लेके चलते हैं। अज्यूम करता हूँ कि यू सॉरी मोस्ट ऑफ द टाइम्स डिनोटेड बाय यूनिवर्सल सेट यू, और आपका जो बुक जो रिकमेंडेड है उसमें कुछ ऐसी साइन है, ठीक है, जो कि यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट कर रही है। So suppose you is an element of 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 up to 20। हम कह सकते हैं कि यू यूनिवर्सल सेट होगा किसका? फॉर एग्जाम्पल ए हमारे पास सेट है 3n such that n belongs to integer, अगर मैं कह दूं और पॉजिटिव इंटीजर कह देता हूं, ठीक है। अगर ए यूनिवर्सल सेट में है तो अगर आपसे कहा जाए कि इसके एलिमेंट्स क्या होंगे, डेफिनेटली हम इसके लिस्ट आउट करेंगे एलिमेंट्स को। हम कहेंगे मल्टीपल ऑफ 3 है, और वो कहां से है? यूनिवर्सल सेट से। ये इसका सबसेट है, तो अगर ये यूनिवर्सल सेट है तो हम कहेंगे कि ए जो होगा फिर वो इक्वल हो जाएगा 3, 6, 9, 12, 15 एंड सेकंड क्या होगा? 18। तो ये जो है यूनिवर्सल सेट, ये उसका सबसेट आ गया, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे हम सबसेट बना सकते हैं। बी हमारे पास है सपोज 2, 4, 6, 8, 10, 12, ठीक है, 14, 16, 18 एंड 20। ये भी इसका सबसेट बन जाएगा इस यूनिवर्सल सेट का। बाकी भी हम बहुत सारे जो है ना वो सबसेट बना सकते हैं इस यूनिवर्सल सेट के। यूनिवर्सल सेट के बाद एक और जो टर्म यूज किया जाता है जिसको कहते हैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ द सेट। सो कॉम्प्लीमेंट जो है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट, अज्यूम करता हूं कि ए, ठीक है, उसको डिनोट किया जाता है ए, और यहाँ पर सी लिखते हैं समटाइम, ए यहाँ पर जो डैश लगा देते हैं, ठीक है। सो दिस इज द नोटेशन ऑफ द कॉम्प्लीमेंट। ये भी कॉम्प्लीमेंट है, और इसको ऐसे लिखा जाता है कि इस कॉम्प्लीमेंट में ऐसे एलिमेंट्स आएंगे। कॉम्प्लीमेंट जो है वो बेसिकली डिफरेंस ऑफ यूनिवर्सल सेट माइनस ए, मींस ऑल एलिमेंट्स ऑफ यूनिवर्सल सेट एक्सक्लूडिंग इटसेल्फ, एक्सक्लूडिंग ए। तो यूनिवर्सल सेट ये वही डेफिनेशन है जो कि डिफरेंस ऑफ टू सेट की डेफिनेशन थी। इसका मतलब ये है कि इसमें जितने भी एलिमेंट्स होंगे एक जैसे, वो यूनिवर्सल से होंगे एंड वो ए से नहीं होंगे। हमें ऐसे एलिमेंट्स बताने इस कॉम्प्लीमेंट में जो कि यूनिवर्सल सेट माइनस ए के इक्वल है, और जो है वो उसको कॉम्प्लीमेंट कहा जाता है। जैसे सपोज अब ये यूनिवर्सल सेट था 1, 2, 3, 4, 5 अप टू 20, और ए हमारे पास है 3, 6, 9, 12, 15, 18। ए कॉम्प्लीमेंट मींस ऑल द एलिमेंट्स ऑफ यूनिवर्सल सेट एक्सक्लूडिंग ए। तो जब ए को एक्सक्लूड कर दूंगा तो हमारे पास एलिमेंट्स आ जाएंगे इज इक्वल टू, से सपोज 1, 2, 4, 7, सॉरी 5, 7, 8, 10, 11, 13, 14, 16, 17, 19 and 20. So this is the basic definition of a complement of a set. मैं एक और भी एग्जांपल जो है इसका जनरेट करता हूँ. Say suppose we have another set B which basically has element 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ऐसे randomly मैंने नाम दे दिया, एलिमेंट दे दिया B को. And if I say what will be complement, B complement, again by definition B complement is basically universal set minus B. All the elements of universal set excluding B. So this will be like, इनको एक्सक्लूड करना है तो 1 तो आएगा, 2 नहीं आएगा, 3 आएगा, 4 नहीं आएगा, 5 नहीं आएगा, 6, 7, 8, 9, 10 ये नहीं आएगा। आगे 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 एंड 20। तो ये तमाम के तमाम एलिमेंट्स जो हो जाएंगे वो कॉम्प्लीमेंट में आ जाएंगे। अज्यूम करता हूँ कि एक और मैं कोई इवन नंबर का सेट ले लेता हूँ,
2 4 6 अप टू 20 है। और अगर आपसे मैं कहूं कि इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, इट्स अ वेरी सिंपल, कॉम्प्लीमेंट विल बी एक्सक्लूडिंग, मींस एक्सक्लूडिंग इवन नंबर्स। अगर इवन नंबर से यूनिवर्सल सेट से निकाल दें 1 3 5 7 9 11 13 15 17 and 19. So this is the complement of a E. So this is overall the basic introductory of different sets. उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। अगर फिर भी कोई कहीं पर मसला हो तो आप मुझे फीडबैक जरूर दे दीजिएगा, ठीक है। और अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।